اگر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو لوگ اٹھائے ہوئے ہیں یہ دہشت گرد تھے تو پھر آپ ان کو عدالت میں پیش کریں. اگر آپ ان کو عدالت میں پیش نہیں کرتے پھر آپ میں اور دہشت گردوں میں کیا فرق ہے؟ نیشنل پریس کلب کے سامنے کھڑا ہوں، مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں فوج لوٹ رہی ہے. دنیا کی کون سی فوج ہے جو ٹافیاں بیچ رہی ہو، جو شوگر ملیں لگا رہی ہو؟ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ ایک ایٹمی پاور ملک اتنے سالوں سے میرے بھائیوں کو لانے میں ناکام ہو چکی. پورے سال کی بجٹ کا خرچہ ان کی گیٹ پر ہوتا ہے. ایسے سسٹم کے اندر اس بندوق کے تھرو آپ نے لوگوں کو، مظلوم قوموں کو، پشتونوں کو، بلوچوں کو، سندھیوں کو تو کچلا ہے، ان کو لوٹا ہے. کنٹریز ہوتی ہیں، ایران ایک وہ ریاست ہے. یہ تو ہم نے معاہدہ کر کے ایک بنایا ہے. یہ ماں نہیں بن پائی، یہ باپ بننا تھا اس کو، مگر وہ بھی نہیں بنا ہے. ماں جو ہے اس کو انہوں نے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے سلا دیا ہے. تو سب جو بچے ہیں ماں کے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماں کو جن لوگوں نے اغوا کیا ہوا ہے، جن کے قبضے میں ہے، اس ماں کو اس کے قبضے سے چھڑائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں حب نعمین اور آپ دیکھیں لب آزاد ٹی وی. مسنگ پرسن ایک بہت بڑا ایشو ہے. کچھ لوگوں کا اور کچھ اداروں کا یہی ماننا ہے اور یہی کہنا ہے اور یہی دعویٰ ہے کہ یہ لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، یا دہشت گردوں کے سہولت کار ہے، یا تحریب کاری میں ملوث ہے. اور بلوچستان میں، KPK میں اور سندھ میں آئے دن درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے روز بروز نوجوان اور یونیورسٹی سے مختلف اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیا جاتا ہے. کہاں لے کے جاتے ہیں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ بات کریں گے. سچ تو یہ ہے کہ دل بھر گیا ہے. اگر بندوقوں کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں مسلسل اس کے دباؤ میں رکھ کے ہمیں لوٹیں گے، ہمارے بچے اٹھائیں گے، تو اب لگتا ہے کہ وہ خاموشی اور وہ ہماری جو برداشت ہے وہ اس کی حد ابھی گزر رہی ہے. ہم اس کورٹوں میں جاؤ تو وہ بھی کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی ہمارے ساتھ چوہے بلی کی ایک گیم کھیل رہے. ججز کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے لگ رہا ہو کہ ہم کسی اور ملک کے ہو اور ہمیں انہوں نے فتح کر رکھا ہے، اور وہ انٹرٹین ہوتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ایسے ایسے جملے. سر، میں قطع کلامی اور معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ بہت سارے مبینہ طور پر یہ سننے کو مل رہا ہے کہ جو مسنگ پرسن ہے یا تو وہ دہشت گردی کے سہولت کار تھے، دہشت گردوں کے سہولت کار تھے، یا دہشت گردی میں ملوث تھے، یا کوئی ایسی تخریب کاری میں ملوث تھے. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے اور حقائق کیا ہے؟ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ایجنسیاں یہ کہہ رہی ہیں تو یہ کورٹیں جو آپ نے بنا رکھی ہے تو وہاں پر کیا گدھے اور گھوڑے باندھیں گے؟ اگر انہوں نے جرم کر رکھا ہے، انہوں نے کوئی دہشت گردی کی ہے تو ان کو لے آؤ، کورٹ میں لے آؤ، ان کو سزا دو. آپ آئین اور قانون کے مطابق سزا دو نا. آپ یہ جو ہمارے گھروں میں آدھی رات کو گھس کر ہمارے ماں بہنوں کی تذلیل کر کے ان کو اس طرح اٹھاتے ہو جس طرح کوئی پولیس یا کوئی فورس نہیں، کوئی ڈاکو اٹھا رہا ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ یا ان کے چھوٹے بھائی یا ان کے بیٹے یا ان کے اور جو ہے فیملی ممبر اور جو دوست ہیں وہ کیا ان سے محبت کریں گے؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ دوبارہ اگر میرے سامنے آئے تو میں تو ان سے لڑ پڑوں گا، اور جب ہم لڑیں گے تو ہم دہشت گرد کہلائیں گے، جب ہم سوال کریں گے، احتجاج کریں گے تو ہم غدار کہلائیں گے، پاکستان کو توڑنے والے کہلائیں گے، پاکستان کے دشمنوں کے دوست کہلائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے اور ہمارے ہاتھ خالی ہیں، اس لیے وہ جو بھی الزامات لگا رہے ہیں، کورٹیں بھی ان کی ہے، تھانے بھی ان کے ہیں، وہ ہم پر لگا سکتے ہیں، مگر سمجھنے والے تو سمجھ رہے ہیں نا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر ہم ماں، ریاست ایک ماں ہے تو ماں اس وقت کہاں ہے؟ مگر میں تو اس کو ریاست نہیں کہوں گا، نہیں تو فیڈریشن ہے. ریاستیں تو وہ جو نیچرل ایک کنٹریز ہوتی ہیں وہ ریاست ہوتی ہے، تو فیڈریشن ہے. اب جیسے یہ 5 اکائیاں تھیں، ایک چلی گئی. بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو سنبھال پائیں گے؟ اور جس طرح آپ پشتونوں کے ساتھ یا جس طرح آپ گلگت بلتستان والوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور سندھ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے سندھ میں کتنے اور صوبوں اور ملکوں کے لوگ انہوں نے جمع کر رکھے. 3 سے 3.5 کروڑ لوگ آپ نے وہاں جمع کر رکھے، اور سارے شہر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے قبضے میں ہیں. ہمارے بچے نہ یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ یونیورسٹیوں میں کسی بھی طرح اگر وہ ان کو سرٹیفکیٹ مل بھی جائے تو ان کے نوکریوں کے دروازے بند ہیں، کیونکہ بڑے شہروں میں جو وہاں قریب ترین بیٹھے ہیں پہلے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح کے علمیات اور اس کے ساتھ وسائل کے حوالے سے آپ دیکھیں تھر سے کتنا کوئلہ نکل رہا ہے. اس کوئلے سے
जो वहाँ पर उसका जो प्लांट लगे वो जाके सियालकोट में लगा हुआ है। देखो ना, ये अलमिया है भाई। वहाँ की माएँ बहनें अब भी दिए जला रही हैं। सच बताऊँ, ये एहतजाज हम अपने लोगों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उनकी खामोशी और उनके नादानी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। बाकी इन बंदूकों के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं होता, इनके ख़िलाफ़ बंदूकें उठती है तब जान छूटती है। ये एहतजाज हम जो अपने यहाँ पर कितने किलोमीटर, मेरे ख़्याल है 1200-1300 किलोमीटर करके तो हम आए हैं। ये इतना फ़ासला तय करके हम आए हैं कि हमारे लोग जो ये भुगत रहे हैं, मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं। पानी के किसान जो है वो जो पानी ज़मीनों को मिलता है उस पर खुद में लड़ जाते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, एक ख़ानदान के 20-20 बंदे मार देते हैं, मगर वो अपने हुकूक के लिए, अपने वसाइल के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। असल में हम अपने लोगों के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि उनकी ये खामोशी, डर और नादानी ख़त्म। बाकी इनसे क्या मुतालबा करना, ये कोई अंधे हैं कि ये कोई बहरे हैं, ये नहीं देख रहे? क्या इन्होंने मुआहदे नहीं किए? 1940 में जो मुआहदा हुआ है, क्योंकि ये फेडरेशन तो मुआहदों पर बनी हुई है ना कि ये कैसे चलेगा, क्या होगा। आपने पहले ही दिन से बंदूक उठा के कब्ज़ा कर लिया है और आज तक उस बंदूक के थ्रू लोगों को, इदारों को चला रहे हैं और लूट रहे हैं। मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूँ, नेशनल प्रेस क्लब के सामने खड़ा हूँ, मगर ये मैं कह रहा हूँ कि हमें फ़ौज लूट रही है। दुनिया की कौन सी फ़ौज है जो टाफ़ियाँ बेच रही हो, जो शुगर मिलें लगा रही हो? ये तो यहाँ पर अभी तो गटर साफ़ करने का भी ये ठेका लेंगे, ये स्ट्रीट लाइट का भी यही ठेका लेंगे। पब्लिक कहाँ जाएगी? सिविलियन कहाँ जाएंगे? इनको पैसा चाहिए, इनको शराबें चाहिए, इनको खाना चाहिए। हमारे बच्चों के ना एजुकेशन है, ना हमारे माँ बहनों के लिए कोई हेल्थ के इदारे हैं, मगर इनके ऑफिस के गेट पर जो ख़र्चा होता है, मैं तो कहता हूँ कि एक गांव के पूरे साल की बजट का ख़र्चा इनकी गेट पर होता है। ऐसे सिस्टम के अंदर इस बंदूक के थ्रू आपने लोगों को, मज़लूम कौमों को, पश्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को तो कुचला है, उनको लूटा है, मगर ये अभी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, क्योंकि गुस्सा और नफ़रत जो बढ़ रही है वो अभी बंदूकों को नहीं देखेगी। सर, असल में मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, असल में जो तब्दीली है और जो नवीद सैर है वो कब आएगा, असल तब्दीली कब आएगी? देखिए, ये मुल्क जो हमने मिलकर बनाया था वो एक तब्दीली का ख्वाब था, जो साईं जी एम सैद ने देखा था, जो बंगाल के रहबरों ने देखा था। पंजाब ने तो इनकार किया था, बलूचिस्तान को तो ज़बरदस्ती इन्होंने लाया था। ये हमारा ख्वाब था, हम चाह रहे थे कि भाई हमें मिल के रहना है, मगर इन्होंने क्या किया? धोखे की चीज़, धोखे का ये सारा ड्रामा, ये ड्रामेबाजी को आप कैसे, हमें नहीं लगता कि इससे कोई बेहतरी आएगी। बेहतरी तब आएगी जैसे सोवियत यूनियन बना, 30 लाख कुर्बानियों से वो बना, मगर नहीं चल पाया, तो उन्होंने एक पसीने का कतरा भी ज़ाया नहीं किया। बैठे मिलके उन्होंने बोला जाओ भाई, आज़ाद हो जाओ, खुद जाओ और ज़िंदगी गुजारो। हमारे लिए यही एक नवीद शहर है। बाकी ये मिलकर रहने का तस्वर कैसे हो सकता है? हम जब घोटकी से निकलते हैं, पंजाब के रोड पर जब गाड़ी आती है तो हमें आंखें बंद हो, पता चलता है कि हम सिंध से निकल आए। हम रोड पे जा रहे हैं हम अभी एक तरक्की और एक ज़्यादा बजट वाले मुल्क में जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अगर समझने वाले समझ रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने हमें दूर कर दिया है। अब अगर मेरा निवाला छीनोगे, मेरे बच्चों के खिलौने छीनोगे, उनकी तालीम छीनोगे, मेरे माँ बहनों की सेहत के इदारे छीनोगे, तो मैं आपके लिए सिर्फ इस दुलबे में और इस बातों पर कि हम मुसलमान हैं, हम भाई हैं, हम अगर यही इस तरह मुसलमानी होती है तो नहीं चाहिए। एक बहन हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान खुशदार ज़िले से हैं और इनके 2 भाई हैं, वो लापता है। आसिफ बलोच है और रशीद बलोच है। रशीद बलोच 31 अगस्त 2018 से लापता, ये दोनों भाई 31 अगस्त 2018 से लापता है और 2018 से लेकर अब तक आज भी बदकिस्मती कह लें कि आज भी 31 अगस्त है और 2023 है। कितने साल हो गए? बहन से बात करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि एक एटमी पावर मुल्क इतने सालों से मेरे भाइयों को लाने में नाकाम हो चुकी है। हमें नहीं पता अभी हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन सा रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि इन 5 सालों में हमने ऐसा कोई दर्द नहीं छोड़ा है
जहाँ से हमें उम्मीद हो और हम ना गए हों। हर दरवाज़ा खटखटाया, अदालतों, कमीशनों, GITs, हाई कोर्ट तक हम गए, लेकिन अभी तक हमारे भाइयों का कुछ भी पता नहीं चल रहा। हालांकि 5 साल पहले 31 अगस्त 2018 को मेरे भाइयों को और उनके दोस्तों को लापता किया गया। पिकनिक मनाते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया और अगले दिन जो है फोर्सेस और CTD ने उनकी गिरफ़्तारी भी ज़ाहिर की। हम नहीं जानते कि पिकनिक। अच्छा बहन जी, आप आपकी बात काट रहा हूँ, कथा कलामी माप, क्यों, वजह क्या है, क्यों उठाया गया है? हम भी यही सवाल कर रहे हैं 5 सालों से कि हमें बताया जाए उन्हें किस कानून के तहत लापता किया गया है, उन्हें क्यों 5 सालों से किसी अदालत या जेल में पेश नहीं किया जा रहा। उनके साथ जो लापता हुए दोस्त थे वो भी 3 साल के अरसे में बाजियाब हो गए। मेरे भाई और कज़न का आज जो है 5 साल मुकम्मल हो गए और हमें नहीं बताया जा रहा। पिकनिक मनाने में हम नहीं जानते कि ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी सज़ा हमें 5 सालों से मिल रही है। अपील, दरख्वास्त, गुजारिश, इल्तिमास, इल्तिजा किसको करना चाह रही हैं आप? अब तो सरबराज बुगटी साहब भी आ गए, अनवर हक काकड़ साहब भी आ गए, तो किसी को इस्तदा, इल्तिजा, इल्तिमास करना चाहती हैं आप? देखिए, इन 5 सालों में हम अपील करते आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम नहीं जानते अभी कौन हमें सुनेगा। हम फिर भी उन सब से, उन अदारों से अपील करते हैं जो खुदाई का दावा कर रहे हैं। हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर एक खुदा है, वो बेहतरीन हिसाब लेने वाला है और हमने अपना फ़ैसला उस पर छोड़ दिया है। हमें यकीन है वो हमारे साथ इंसाफ करेगा। अगर पाकिस्तान हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा तो वो खुदा हमारे साथ ज़रूर इंसाफ करेगा। जिस तरह हमारे साथ हुआ है, वो लोग भी डरें इस दिन से, इन तकलीफ़ों से कि 3 दिनों से हम यहाँ पर पड़े हैं इस गर्मी में। रात को मच्छर वगैरह, या इससे पहले भी पिछले साल को हमने गवर्नर हाउस के सामने क्वेटा में 50 दिनों का धरना दिया, लेकिन वहाँ पे भी हमें झूठी तसल्लियाँ दी गई। 3 महीने का वक्त दिया गया और अभी 1 साल हो गया हमारे प्यारे नहीं आए। एक माँ, मेरे कज़न रशीद बलूच की वालदा, जो हाल ही में 4 महीने पहले रमज़ान में उनका इंतकाल हो गया, उनको दिल का दौरा पड़ा। 4 सालों से वो इंतज़ार में थी। तो आखिरी वक्त तक एक माँ कलमे की जगह अपने बेटे का नाम लेती रही कि काश मैं एक दफ़ा रशीद को देखती, मुझसे ये उसके गुमशुदगी का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। या मेरे वालिदैन हैं जो बूढ़े हो चुके हैं। मेरी वालदा 3 महीने से बिस्तर पे पड़ी हुई है और एक ही ख्वाहिश कर रही है कि काश मैं अपने बेटे को देख सकूं। आप उन अदारों से कहना चाहती हूँ कि आप डरे उस दिन से, जिस तकलीफ़ों से हमारे वालिदैन गुज़र रहे हैं। खुदा बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। उन दिनों से डरे कि आपकी माँ बहनें इन सड़कों पे फ़रियाद करेंगे और उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होगा। सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार और कौन नहीं जानता, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। क्या कहेंगे सर, जो मिसिंग पर्सन का जो इशू है, ये आपने कई प्रोग्राम्स किए और ये इशू आपने रेस किया, क्या कहेंगे आप? देखें, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है अनवारुल्लाह काकड़, उन्होंने सेनेट में तकरीर की थी कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो उनको चाहिए कि अभी ये इशू चल के इस्लामाबाद में इधर आके बैठा हुआ है। ये सारे लोग बलूचिस्तान से आए हैं और उनको चाहिए कि इधर आते, इनसे बात करते, वो या वज़ीर दाखिला साहब, उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है, तो इनसे पूछते आपका क्या मसला है। ये इधर बच्चियां भी हैं, खुशदार से आई हैं, उनके भाइयों को गायब किया हुआ है। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये इंसान है, कोई ये जानवर तो नहीं है, तो इनकी आवाज़ तो सुननी चाहिए ना। तो स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में यही फ़र्क होता है। अगर आप कहते हैं जी कि ये जो लोग उठाए हुए हैं ये दहशतगर्द थे, तो फिर आप उनको अदालत में पेश करें। अगर आप उनको अदालत में पेश नहीं करते, फिर आप में और दहशतगर्दों में क्या फ़र्क है? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से पाकिस्तान के जो मज़लूम तबकात हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, उसके जो मज़लूम लोग हैं, वो ये समझते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, इसलिए वो अपनी आवाज़ सुनाने के लिए इस्लामाबाद में आए हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इधर 2-3 दिन से ये लोग बैठे हैं,
لیکن ان کی بات سننے کے لیے کوئی وزیر یا کوئی مشیر نہیں آیا. صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ریاست ایک ماں ہے تو ماں کدھر ہے؟ ماں جو ہے اس کو انہوں نے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے سلا دیا ہے. تو سب جو بچے ہیں ماں کے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماں کو جن لوگوں نے اغوا کیا ہوا ہے, جن کے قبضے میں ہے, اس ماں کو اس کے قبضے سے چھڑائیں اور ماں کو کھڑا کریں. ماں اگر کھڑی نہیں ہوگی تو یہ ریاست نہیں چلے گی. بہت شکریہ سر. بہت